Hello, myself Kishinda Dave. I am your chemistry mentor and I am going to take the physical chemistry part. I think it is a thoda tricky part of physical chemistry as compared to organic and inorganic, which is based on all formulas, understanding and all that stuff. And I have done my graduation from DADB in law and I have an experience of 4.5 years of teaching offline and online chemistry. So here we're gonna discuss whole syllabus of NEET and JEE, papers or question bank and all the things which will help you to just go good in chemistry. An academy is basically a platform where teachers are not bounded to just complete the syllabus, but they are just uh, teaching you for your, or I can say they are just preparing you for your future, for your dreams, so that you can become a good doctors and engineers. An academy is a revolution in the teaching industry, or I can say the revolution for the education system. They basically teach the correct method to everyone that how should a preparation is done and what should be delivered to the students during their preparation time. I basically love an academy as a teaching platform because I just enjoy the enthusiasm, I just enjoy the joyfulness of the students which are coming here. They are basically very sincere and they are basically very much attached to the preparation so that I just enjoy the feeling of teaching here. And so we are starting with our physical chemistry. Before discussing the plan, how a physical chemistry is proceed, we are discussing the two questions. अगर कुछ भी काम करते हैं हमें पता होना चाहिए कि हम वो काम कर क्यों रहे हैं. So first question is what is physical chemistry? फिजिकल केमिस्ट्री है क्या, हमको पढ़ना क्यों है फिजिकल केमिस्ट्री, या फिजिकल केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में. सो दिस इज द क्वेश्चन एंड इसका बहुत आसान सा सवाल, और सॉरी इस बहुत आसान के सवाल का बहुत ही आसान सा जवाब है. दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री जो कि हमें डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेबल और चेयर पे बैठे हैं तो इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड ऑल दैट थिंग्स. और ये जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होता है ये हम केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, राइट. फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है ना, वो एक क्वांटिटी डिफाइन कर देता है कि चलो अगर गैस है तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे. अगर मान लो हमारे पास पानी है तो ये लिक्विड होता है, इसको हम लीटर्स में लेंगे. अबाउट द प्रेशर जो बिटवीन अ टेबल लगता है, अबाउट द डेंसिटीज. सो बेसिकली जो भी हमारे आसपास चीजें होती हैं कहीं ना कहीं उसमें फिजिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है. दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री एंड इट इज अ बेस ऑफ केमिस्ट्री. अगर हम इनऑर्गेनिक में जाते हैं तब भी हमें फिजिकल केमिस्ट्री की जरूरत होती है, अगर हम ऑर्गेनिक में जाते हैं तब भी हमें फिजिकल केमिस्ट्री की जरूरत होती है. Now I am discussing you the plans, or I can say we are preparing for an exam that is JEE and NEET, जो कि दोनों ही एक नेशनल लेवल एग्जाम्स होती हैं. हमें पता है नीट देते हैं वो लोग जिन्हें डॉक्टर बनना होता है, एंड जेई देते हैं वो लोग जिन्हें इंजीनियर बनना होता है. सो बोथ आर वेरी गुड प्रोफेशन, बोथ आर वेरी हार्ड वर्किंग प्रोफेशन. और इसे चूज करने के लिए हमें भी हार्ड वर्क करना होता है, हमें पढ़ना होता है. सो या दिस इज बेसिकली अबाउट एन एग्जाम्स जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री हमें यूज होने वाली है और हम किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. Now this is a chapter of class 11th and class 12th. This is basically a 11th chapters and this is basically a 12th chapter. So I am going to discuss the plan that how we are going to cover our next 100 hours in these chapters. So firstly we are covering the 11th part. So on some basic concepts of chemistry we will donate total 10 hours. सी वाई 10 hours, ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, इसमें 10 घंटे देने की ऐसा हमें कोई जरूरत नहीं होती है. बट वाई आई एम गिविंग यू 10 hours हियर बिकॉज यहाँ पे
बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मीन्स बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें पूरी केमिस्ट्री के बेस में हेल्प करती हैं। तो आई वांट कि ये चैप्टर इतना अच्छे से आप लोगों को आ जाए कि आपको पूरी केमिस्ट्री में कहीं पे भी मोल क्या होता है, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब वापस दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हम ये चैप्टर इतना थरोली कर लें इस 10 घंटों में कि हमें वापस कोई भी चीज जो बहुत बेस है केमिस्ट्री का उसे वापस दोबारा रिवाइज करने का, पढ़ने का जरूरत ना हो। दैट्स व्हाई 10 आवर्स फॉर दिस चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हम देंगे 11 आवर्स। सी, ये चैप्टर लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है। दिस चैप्टर इज लेंदी बिकॉज इसमें बहुत सारे हमें बताते हैं एटम्स कैसे बनते हैं, एटम्स किस किसने बनाए, कहाँ से आए। बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और ये चैप्टर बेसिकली हमें एटम के बारे में पूरा कंफ्यूजन दे देता है और चैप्टर बहुत लेंदी है। दैट्स व्हाई वी आर डिनोटिंग द 11 आवर्स है। स्टेट ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल चैप्टर और ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं दैट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बस इसी को एलिब्रेट करके हमको जाना है। तो 6 आवर्स फॉर दिस चैप्टर। Thermodynamics is basically something which is new to us. So here this is a lengthy chapter too, and this is the most important chapter of class 11th because ये lengthy है, ये नया है, इसमें बहुत सारे concepts है and numericals बहुत सारे हैं जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो 11 आवर्स फॉर दिस। सिमिलरली इक्विलिब्रियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की तो ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला आता है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा आता है हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम। So basically here I have divided it for 6 hours for chemical equilibrium and 6 hours for ionic, means in total I have given 12 hours for this chapter. There is one more chapter, I think it's not covered in PPT, that is redox reaction. See, redox reaction बहुत छोटा सा चैप्टर है, हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए। दैट्स ओनली इन दिस चैप्टर। तो 4 to 5 hours is enough in this. Now we are going to a class 12th syllabus, that is solid state first. That is 9.5 hours for solid state. देखो इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, बट या ये कुछ नया है क्योंकि इसमें हम अबाउट 3D एंड 2D स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, अबाउट डिफेक्ट्स ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज समवॉट थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम दी नॉर्मल केमिस्ट्री। दैट्स व्हाई 9.5 आवर्स। सी, ये जो टाइम है ऐसा नहीं है कि 10 आवर में हम लोग सिर्फ चैप्टर कवर करें। 10 आवर्स में हम लोग इसमें चैप्टर भी कवर करेंगे, हम लोग इसमें क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। पूरा मिला के आई एम गिविंग यू द 10 आवर्स फॉर पर्टिकुलर चैप्टर और 9.5 आवर्स ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर प्रिपरेशन बिकॉज बहुत सारे बच्चे गुल हो जाते हैं इसमें, उन्हें नहीं समझ आती इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड तक दे आर स्ट्रगलिंग विद दिस। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आई हैव गिवन 20 आवर्स because it is literally it the 20 hours is needed in this chapter. Now we have the chapter that is chemical kinetics. So chemical kinetics, we have at least I can say 10 hours of chemical kinetics. ये भी लेंथी चैप्टर नहीं है बट थोड़ा समझने का चैप्टर है बिकॉज इसमें we have to cover all first order reaction, zero order reaction, two order reaction. The questions are a bit tricky in this chapter, थोड़ा time consuming हो जाता है questions में, that's why. Now surface chemistry is theoretical chapter, सिर्फ इसमें याद करना है, समझना है, तो 8 hours is enough for this. Now we have solution, that is 10 hours. See, solution में question, solution and some basic concepts of chemistry somewhat थोड़ा थोड़ा मिला हुआ because इसमें भी normality, formality, modes का use होता है, but the I can say the concepts are new. Henry's law आ जाता है, Raoult's law आ जाता है, that is basically थोड़ा different from others and questions are a bit tricky. तो यहाँ पे हम बात करें तो हमने 2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बोल दिए, थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन क्लास 12th. So basically this will be my plan for your 100 hours. इसमें we will covering our chapter, we will covering our questions, and we will covering our previous year papers, previous 10 years paper we will be covering. This all will be covered in 100 hours. Yeah.
Now next, I'm going to just give the small introduction of equilibrium. Basically, I'm just starting the chapter equilibrium. So equilibrium is what? If someone asks you to define equilibrium, how we will define it? So it is the state of system at which all the measurable properties of system like color, pressure, density becomes constant. See, this is the basic definition कि इक्विलिब्रियम होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक ऐसा स्टेट जहां पे हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सब चीजें कांस्टेंट होती है, लेट्स से कलर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, like that we can say that if I have taken, let's say, A gives B. तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब ए में जो भी, मान लो ए का कलर अगर रेड है तो बी का कलर भी रेड होगा, देन इट इज इक्विलिब्रियम. अगर ए पे 1 बार प्रेशर है तो बी पे भी 1 बार प्रेशर होगा. दिस इज बेसिकली और इक्विलिब्रियम. सो नाउ इक्विलिब्रियम का एक और मतलब होता है इन थर्मोडायनेमिक्स. आई कैन से इन थर्मोडायनेमिक्स वी कैन से इक्विलिब्रियम तब होता है जब गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम होती है एंड एंट्रोपी मैक्सिमम होती है. दिस इज बेसिकली थर्मोडायनेमिकल टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? तो इक्विलिब्रियम समझ आ गया कि व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट्स ऑल कलर, प्रेशर, डेंसिटी चेंज होता रहता है. मान लो अगर मैंने ए से बी बनाया है तो इनिशियल स्टेज में ऑब्वियस बात है, अगर ए से बी बन रहा है तो इनिशियली उसका कलर भी चेंज होगा, उसका डेंसिटी भी चेंज होगा, उसका प्रेशर भी चेंज होगा. लेकिन एक ऐसी स्टेट आ जाती है, एक ऐसी स्टेट आ जाती है जहां पे वो कुछ भी चेंज नहीं कर पाता, when where they do not change anything. It can't change its color, pressure, density, anything. That is basically the state of equilibrium. I hope you understand what is equilibrium. Now next we are going to cover the types of reactions. The types of reactions. So there are two types of reaction. First is a reversible reaction. You all know about reversible reaction and irreversible reaction, but there are a thode points which you need to remember, like if some theoretical question comes, so you should able to answer it properly, that what is reversible and what is irreversible. So I can write here the reaction which can proceed in both the direction. अब ये both direction क्या होती है? फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड भी हो सकती है. दैट इज बेसिकली अ रिवर्सिबल रिएक्शन. An irreversible reaction is only taken place in one direction. Right? Now, next point is that it can always be done in the closed vessel. ओपन वेसल में ये रिएक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्लोज वेसल में होती है. इसमें ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं, कहीं में भी हो सकती है. Examples of irreversible reaction is precipitation. Right? देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो अगर ए से बी बनता है, पहले बी बनने के बाद वापस वो ए में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज बेसिकली डबल साइडेड एरो व्हिच इंडिकेट्स द रिवर्सिबल रिएक्शन. अब यहाँ पे सिर्फ ये क्लोज कंटेनर में क्यों हो रही है? एक रिएक्शन लेते हैं, लेट्स से वी हैव टेकन CaCO3
and it gives us CaO plus CO2. अब यहाँ पे this is a gas, right? This is again solid and this is also solid. अब अगर ये ओपन में होती तो ये गैस तो बाहर निकल जाती. अगर ये गैस बाहर चली गई तो वापस CaCO3 हम नहीं बना सकते. ये क्लोज कंटेनर में है, that's why we are able to form CaCO3 again. This is basically the concept why reversible reaction is taken place in only closed container. Open containers में हम reversible reaction नहीं notice कर पाएंगे. Fine. Next we have the characteristics of chemical equilibrium. See, equilibrium को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एक केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, एक आयनिक इक्विलिब्रियम होता है. सबसे पहले हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कवर करेंगे एंड देन वी विल गो टू द आयनिक इक्विलिब्रियम. दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं. इक्विलिब्रियम है तो ऑब्वियस बात है बेस सेम है बट द कंसेप्ट्स आर डिफरेंट. सो फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. Equilibrium can only be attained in the reversible reactions which are carried in the closed vessel. सबसे पहला इसका होता है कि ये सिर्फ reversible reactions में ही हो सकते हैं. और reversible है तो obvious सी बात है कि इनका closed होना important है. Right? For example, जैसे अगर हम बात करें कि मैंने A से क्या बना दिया, B बना दिया. अब हमको पता है कि इसमें दो रिएक्शंस होते हैं. पहला होता है फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दूसरा होता है बैकवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन इज बेसिकली जब A से B बनता है एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज बेसिकली जब B से A बनता है. इट इज फॉरवर्ड एंड इट इज बैकवर्ड. इफ आई हैव रिटन समथिंग लाइक bracket A, this is something called as concentration of A. This is something called as concentration of A, that is number of moles of A divided by volume of system. And if I have written the bracket B, that is the concentration of B, and that is number of moles of B divided by volume of the system. सीधी सी बात है, अगर हम बात करें कि अगर हमारा concentration is directly proportional to mole fraction, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ ए. अगर कंसंट्रेशन हमारा बढ़ जाता है तो हमारे क्या होंगे, मोल्स भी बढ़ेंगे. मतलब मोल्स बढ़े तो कंसंट्रेशन बढ़ गया, मोल्स कम हुए तो कंसंट्रेशन भी क्या हो गया, कम हो गया. एंड सिमिलरली विद बी, कि अगर बी का कंसंट्रेशन हमारा बढ़ा हुआ है इसका मतलब कि मोल्स बढ़े हुए हैं, मोल्स कम है मतलब कि कंसंट्रेशन कम है. दिस हैव द डायरेक्ट रिलेशनशिप between concentration and the moles. करेक्ट. अब बहुत क्लियर सी बात है, अगर हमको कोई भी रिएक्शन चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा. अगर हम रिएक्शन करते हैं A gives B, तो क्या हो रहा है, पहले हमको ऑब्वियस ही बात है A कम हो रहा है और B बन रहा है. इसका मतलब क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या थी ये, और बैकवर्ड रिएक्शन थी हमारे पास. फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कैसी हो रही है. फर्स्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ती जाती है. बी का प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, मींस बी वापस ए बनाना चाहता है. इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होती जाती है, फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होती जाती है. अगर हम इसका ग्राफ देखें ऑफ द रेट एंड टाइम, तो आई कैन मेक ग्राफ लाइक दिस, कि दिस इज माय बैकवर्ड रिएक्शन जो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, दिस इज माय फॉरवर्ड रिएक्शन जो कॉन्स्टेंटली कम होती जा रही है. ये एक पॉइंट पे मिलेंगे. क्या होगा, जब हमारे पास ऐसा ऐसा एक रिएक्शन है, अब ये एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये एक लेवल में आ जाएंगे और वो लेवल हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम. समझ आ रहा है क्या हो रहा है. फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास कम हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ती जा रही है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये मीट करेंगे एंड दैट इज बेसिकली हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट. यहाँ से हमारा इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज अ बैकवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन.